توہین کی گئی، اہانت کی گئی۔ غیرت مند مسلمان آج 12 ربیع الاول کی رات حضور کا تذکرہ کر کے، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ سن کے اور نعرے لگا کے ثبوت دے، خدا کی قسم ہم زندہ ہیں تو مصطفیٰ کی غلامی کے لیے زندہ ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ توہین ہوگی، رسول اللہ کی اہانت ہوگی، مسلمان خاموش رہیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آؤ آج کسی فرقے کی بات نہیں کرتا، آج کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے، جو حضور کا عاشق ہے، اس کا ایمان یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ہماری گردنیں کٹ تو سکتی ہے، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو تو سکتا ہے، مگر سرکار کی توہین کا ایک لفظ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بچہ آج گواہی دے رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یارو اللہ اکبر، دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔ یہ شعر مشکل ضرور ہے، مگر اگر توجہ کرو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آپ کی نے میرا ماں نور کا دریا دیکھا۔ ہاں ہاں چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ حضرت قبلہ کاری صاحب، آج ہم رات کے وقت چاند کو دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں۔ شب معراج جب حضور آسمان کی طرف جا رہے تھے تو چاند بھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ستارے بھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں، حاجی صاحب، آپ سب چاند کو اس لیے دیکھتے ہیں، میں تو اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس چاند نے یار کے چہرے کو دیکھ رکھا ہے۔ چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا۔ کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیر، عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا۔ اللہ اکبر، خدا کی عزت کی قسم، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں لوگ نابینا ہو گئے، قرآن نے بھی کہا ان کی قوت بصارت ختم ہو گئی۔ مگر میں کچھ اور بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کی کسی آیت کی تفسیر میں تعویل تو ہو سکتی ہے، یوں نہ کہو کہ نابینا ہو گئے بلکہ تعویل کرو، توجہ ہے، بلکہ تعویل کرو۔ تعویل یوں کرو کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے حسن میں اس قدر مستغرق تھے کہ انہیں یوسف کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آیا کرتا تھا، انہیں حضرت یوسف کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا والضحیٰ، قسم ہے آپ کے چہرے کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے آپ کی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، جو کہتے ہیں ناراض ہوں وہ سن لے، وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ، محبوب قیامت کا سما ہوگا، اس وقت تک میں خدا عطاؤں کی بارش بند نہیں کروں گا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، زندہ باد۔
आओ तेरी किस्मत पे नाज करता हूँ, आज तेरी किस्मत पे नाज करने वाला हूँ। खुदा की कसम एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे मेरे आका कयामत के दिन आप कब राजी होंगे? यहाँ हुजूर को अपना जैसा कहने वालों, बात को मेरी सुनते जाओ। खुदा की कसम कयामत के दिन अल्लाह का हर नबी अल्लाह की रजा को चाहता होगा। हुजूर की शान ये है कि खुद खुदा मुस्तफा की रजा को चाहते होंगे। मैं एक जुमला मौजू से हट के बोलने वाला हूँ, मगर बड़ी तवज्जो के साथ। अगर आप सूरज में चले, सूरज की धूप में चले, रोशनी में चले, आपके जिस्म का साया होगा। आवाज कम आई है, होगा, साया आएगा। आएगा। सारे बशर का तो साया है, मगर हुजूर का साया नहीं था। बशर का साया तो है, मगर हुजूर का साया बोलिए नहीं था। क्यों? क्या वजह है? मैं एक बात समझा हूं, वो आपको समझाने वाला हूं। वजह यह है कि साया आदमी की तरह होता है। आदमी मोटा हो और उधर सूरज के सामने चले तो साया भी उस जैसा। इंसान कमजोर हो, साया भी, समझ आ रही? साया भी उस जैसा। अगर जुल्फे हो तो साया भी उस जैसा। अगर रीश हो तो साया भी उस जैसा। सवाल मैं कर रहा हूं, जवाब आपने देना। अगला जुमला मैं कहूंगा, मैं देखता हूं फिर कौन सुभान अल्लाह नहीं कहता। तेरा रूह जुबान सुभान अल्लाह कहेगी। पता ये चला जैसे बंदा होता है वैसे उसका साया होता है। जैसे इंसान होता है वैसे उसका साया होता है। हाथ जोड़ रहा हूं, बात बड़ी अजीब है। अगर दिल को लगे तो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अल्लाह ने हुजूर का साया इसलिए नहीं बनाया कि अगर हुजूर का साया होता तो हुजूर जैसा होता। अल्लाह को गवारा नहीं था कि हुजूर का साया भी हुजूर जैसा हो। जब वो खुदा हुजूर जैसा हुजूर का साया नहीं बनाता तो मुस्तफा जैसा कैसे बनाएगा? अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। दूसरी बात की इजाजत दो तो करता हूं। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा, हजरत जिब्रील हुजूर के पास आते थे। उठाइए सही बुखारी को, बगैर हवाले के बात नहीं। उठाइए सही बुखारी को, सही मुस्लिम को, जामे तिरमिज़ी को, सुनन नसाई को, सुनन इब्न माजा को, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल को। रावी फारूक आज़म, रावी हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं हजरत सैयदना, मुझे पहले तकरीर करने दो, मैं आखिर में सब कर लूंगा इंशाअल्लाह। रावी हजरत सैयदना फारूक आज़म है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तवज्जो है, आप फरमाते इस्तला अलैना रजुल, हुजूर की कचहरी लगी हुई है। अचानक एक बंदा आया, सफेद लिबास था। फअस्नद रुकबतैह इला रुकबतैह, उसने अपने घुटनों को हुजूर के घुटनों के करीब किया, सवाल किया। हुजूर ने जवाब दिया, वो चला गया। हुजूर ने हजरत फारूक आज़म से पूछा आने वाला कौन था? मेरे आका आप जानते हैं। हुजूर ने फरमाया आने वाला जिब्रील था। आने वाला जिब्रील था। किसकी शक्ल में था? बशर की शक्ल में। किसकी शक्ल में था? बोलो किसकी शक्ल में था? सब बोलो किसकी शक्ल में था?
आओ कुरान पढ़ते हैं। फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। अल्लाह कहता है हमने अपनी रूह हजरत जिब्रील को हजरत मरियम के पास भेजा, हाथ जोड़ रहा हूं, फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। हजरत जिब्रील नूर थे, कुरान कहता है फतमस्सला लहा बशरन सविय्या। वो बशरी सूरत में, बशरी पर्दे में, हुजूर के बशरी पर्दे में हजरत मरियम के पास आए थे। हाथ जोड़ रहा हूं, बात दिल को लगे तो बखल से काम नहीं लेना। कुरान की एक आयत हदीस से साबित हुआ, जिब्रील बशरी सूरत में हुजूर के पास आता था, हजरत मरियम के पास आता था। आसन अगर जिब्रील नूर होकर बशरी पर्दे में हुजूर के पास आ सकता है तो मुस्तफा नूर होकर भी पर्दे बशरियत में तेरे लिए मेरे लिए आ सकते हैं। तवज्जो है, सरकार नूर होकर पर्दे बशरियत के अंदर आ सकते हैं। यारो तवज्जो कर, हजरत जिब्रील किसकी शक्ल में आते थे? वकान याती है फी सूरत दहिया, हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आते थे। मेरा जुमला सुनते जा कारी साहब, दहिया भी हसीन था, जिब्रील भी, दहिया भी हसीन था, जिब्रील भी हसीन था। आखिरी जुमला, फिर सवालों का जवाब, फिर आपसे रुखसत। दहिया भी हसीन थे, हजरत जिब्रील भी हसीन थे, मगर तवज्जो कर, दहिया खुद चलते थे, जिस्म का साया बनता था। दहिया खुद चलते थे सहाबी, तो जिस्म का साया, बोलो जिस्म का साया बनता था। मगर हजरत जिब्रील जब नूर होकर हजरत दहिया की शक्ल में आते थे तो जिब्रील के बशरी जिस्म का साया नहीं बनता था। दहिया खुद चलते थे, साया नहीं होता था। जब जिब्रील दहिया की शक्ल में आते थे साया बनता था। पता चला कि नूर जब बशरी सूरत में आता है जिस्म का साया नहीं बनता है। जब जिब्रील का साया नहीं बनता था, हुजूर के जिस्म का साया कैसे बनता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। चलो आपकी अकल के मुताबिक मिसाल दे दूं। इस तार को छीलो, इसके अंदर नंगी तार नजर आएगी। तार के अंदर है बिजली, जिसको कहते हैं बर्क। अरबी में क्या कहते हैं? बर्क। मैं आपसे कहूं कि नंगी तार पे हाथ रख, आप कहेंगे नहीं रख सकते, इसलिए मर जाएंगे। इसकी ताकत ज्यादा, मेरी ताकत कम। तवज्जो करना, अब अगर हुजूर होते महद बशर तो तू तो बर्क पे हाथ नहीं रख सकता। मुस्तफा तो बुर्राक पे सवार होके लामका पे तशरीफ ले। यारो अल्लाह अकबर। मुझसे कहा मौलाए कायनात हजरत अली और मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहा, इनकी शान में बयान कर देना। हजरत अली और मुर्तज़ा की शान, हजरत सिद्दीक़ अकबर की शान मुझसे कहा गया। मगर उससे पहले एक चीज बयान कर देना चाहता हूँ। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहना चाहता हूँ, आज के बाद तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। आज 12 रबीउल अव्वल की रात है। फराश के कैमरों ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, हुजूर की तौहीन की। आज के बाद इसी स्टेज से तुम भी ऐलान करो, मैं भी ऐलान करता हूँ। आज के बाद फराश की बनी हुई हर शय हम पर हराम। हाथ खड़ा करके ऐलान कर दो, आज के बाद उसका बैठा। मुझे कसम है परवरदिगार की, माँ का रिश्ता बाद में, बाप का रिश्ता बाद में, अरे खून के रिश्ते बाद में है, मुस्तफा की इज्जत का रिश्ता पहले है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।